Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8 G Science, we are on the chapter 14th. In the previous lecture, we complete the revision of the keywords of our 14th lesson. Today, we start the part ABC. In the part A, we have fill in the blanks. Generally, first one is generally identical individual are produced by dash reproduction. So first one answer is asexual. Dash are the specialized cell that take part in sexual reproduction. Answer is gametes. Our second answer is gametes. An animal that produces both male and female gametes is known as dash animal. So our answer is hermaphrodite. Hermaphrodite is our answer. A fertilized egg is also known as zygote. Our answer is zygote. The incubation period of hen's egg is 21 days. How much? 21 days is our answer. Next we have in part B, match the followings. First one is hydra. Hydra is matched with budding. Reptiles is matched with oviparous. Earthworm is matched with hermaphrodite, and gills with tadpole, and egg cell is matched with calcite. This is the match the following answers and matching of these. Now sorry, one is left. In part C, first one is tick the correct answer. The site of fertilization in humans is oviduct. Our answer is oviduct. Our answer is oviduct. Second is the reason why parrot doesn't belong to the same group as the monkey, man, cat is that. Our answer is the parrot is it is not oviparous. ये oviparous नहीं होते. No, there is mistake in the answer. Answer is it is oviparous, and option is it is not oviparous. That is right answer. It is not oviparous. An organism which reproduces by budding is yeast. Is our answer. Yeast means khamir. A caterpillar develops into a silk moth through the process of metamorphosis. Our answer is metamorphosis. A foetus can be best defined as a well-developed embryo. A well-developed embryo. Now we have part D. Question answer. First one is distinguish between asexual and sexual reproduction. asexual reproduction a single parent is involved. इसमें केवल एक single parent involved होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. जीमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड. जीमेट्स आर फॉर्म्ड. इसमें जीमेट्स फॉर्म नहीं होते, इसमें फॉर्म होते हैं. इट इज़ ए फास्ट प्रोसेस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फास्ट प्रोसेस होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्लो प्रोसेस होती है. ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू पेरेंट. जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के. इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग shows some variation from the parents.
कुछ एक वेरिएशन जो है पेरेंट्स से मिलती जुलती होती हैं, कुछ अलग भी होती हैं। नेक्स्ट वन, हाउ इज़ रिप्रोडक्शन कैरिड आउट इन हाइड्रा। हाइड्रा में रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, तो बाय बडिंग। हाउ इज़ फर्टिलाइजेशन इन ए हैन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन इन ए फ्रॉग। हैन में फर्टिलाइजेशन डिफरेंट होती है फ्रॉग की फर्टिलाइजेशन के से किस तरह से। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैंस वेल वाइल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फ्रॉग। हैन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है जबकि फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ओविपोरस एंड विविपोरस एनिमल्स। ओविपोरस एनिमल्स लेज एग, ओविपोरस एनिमल जो है अंडे देते हैं, वाइल विविपोरस एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, जबकि विविपोरस एनिमल जो हैं यंग वंस को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं। What is the number of eggs laid by a frog at a times much higher than those laid by a hen। जो नंबर ऑफ एग्स जो हैं फ्रॉग जो है एक टाइम में देता है वो ज़्यादा होते हैं एक हैन की बजाय। कैसे। फ्रॉग लेज एग इन वाटर वेयर एग्स आर एक्सपोज्ड इन predators and water current, but a hen lays egg on land and take place of them during incubation। जो फ्रॉग जो है पानी में अपने अंडे देते हैं और जो एक्सपोज जो होते हैं जो एग्स जो हैं वो पानी के करंट से होते हैं, यानी कि पानी के वेग से। बट ए हैन जो है लेज एग ऑन लैंड, भूमि पर अपने अंडे देते हैं और इनकबशन यानी कि उसको सेने के से उसके चूजे निकलते हैं। मोस्ट ऑफ द एग ऑफ फ्रॉग आर डिस्ट्रॉयड बाय द टाइम tadpoles come out of some of them। ज़्यादातर अंडे जो हैं फ्रॉग के वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब उसमें tadpoles निकलने के समय पे। hence ए फ्रॉग नीड्स टू ले थाउजेंड्स ऑफ एग, इसलिए फ्रॉग को थाउजेंड्स के राउंड अंडे देने पड़ते हैं। दिस इज़ नॉट इन द केस ऑफ हैन, हैन के केस में ऐसा नहीं होता। हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए जाइगोट एंड एन एम्ब्रोयो। आप कैसे अंतर बताएंगे जाइगोट और एम्ब्रोयो में। जाइगोट इज़ यूनिसेलुलर वाइल एन एम्ब्रोयो इज़ मल्टीसेलुलर। जाइगोट जो है यूनिसेलुलर होता है जबकि एम्ब्रोयो जो है मल्टीसेलुलर होता है। यहाँ तक आप पार्ट ABC जो है अपनी बुक के अंदर फिलअप करेंगे, जबकि पार्ट D आप बिल्कुल साफ़ राइटिंग में बड़ी अच्छी तरह से अपने कॉपी में इसको राइट करना है, पार्ट D के क्वेश्चन आंसर्स को। और पार्ट ABC या कीवर्ड्स जो हैं आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसे कॉपी में राइट करें, आप सिर्फ पार्ट D और E ही के क्वेश्चन आंसर ही कॉपी में राइट करेंगे। ओके, और इनको अच्छी तरह से लर्न करेंगे। दैट इज़ योर होमवर्क। ओके, थैंक यू सो मच।